یہ بھائی رکشہ ڈرائیور ہے، ان سے انٹرویو لیتے ہیں. بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیا چلاتے ہو؟ ان ڈرائیو چلاتے ہو یا ینگو چلاتے ہو؟ بھائی ینگو استعمال. بھائی 7 مہینے ہو گئے، 7 مہینے سے ینگو ہی چلا رہے ہیں، اور ان ڈرائیو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان ڈرائیو بہت کم ہوتی ہے. صرف کبھی ینگو کبھار ایک آدھ رائڈ اٹھا لی تو اٹھا لی، نہیں تو پھر صرف ینگو ہی استعمال کرتے ہو؟ یہ ینگو پہ کتنی رائڈ ہے؟ وہ میکس والا موڈ چلاتے ہو یا فلیکس والا؟ میکس موڈ چلا رہے ہیں بھائی. وہ دیکھ لیتے ہیں کام کے حساب سے، جیسے سنڈے ہو گیا یا پھر منگل، یہ حساب کتاب سے کبھی 13 کبھی 16. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے کتنی رائڈیں ڈیلی سلیکٹ کرتے ہو؟ کس ٹائم کو نکلتے ہیں؟ صبح 12 بجے نکلتے ہیں اور 12 سے شام رات یعنی کہ 9 بجے تک 16 رائڈیں کمپلیٹ کرتے ہیں. 12 بجے سے 9 بجے تک 16 رائڈیں؟ مطلب کہ آپ اوپن نہیں چلتے، مائی ایریا لگاتے؟ کون سا مائی ایریا لگاتے؟ مائی ایریا نہیں لگاتے، چلتے تو چھوٹی رائڈس لیتے ہیں پول میں سے، یعنی کہ. اچھا پول میں، آن لائن نہیں کرتے، صرف پول میں سے رائڈیں لیتے ہیں؟ آن لائن کرتے ہیں لیکن آن لائن بہت کم، زیادہ پول استعمال اچھا کرتے زیادہ پول استعمال کرتے ہیں. 16 رائڈوں پہ جو ارننگ ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے؟ مطلب کہ ارننگ جو اس پہ شو ہو رہی ہوتی ہے ینگو کے سامنے کہ بھئی یہ آپ کی ارننگ ہے، کمیشن نکال کے، وہ کتنی ہو جاتی ہے 16 رائڈ پہ؟ تقریباً 16 رائڈوں پہ ہو جاتی ہے کم سے کم چھوٹی رائڈس پہ 4,000-4,500 کے قریب قریب. 4,000-4,500 16 رائڈ پہ. اور اگر وہ جیسے گارنٹی بونس کا وہ آپ کا بھی لگتا ہوگا دائرہ وغیرہ، تو اگر اس میں سے آپ رائڈیں کرتے ہیں 3 4 5 یا جس ایریے میں لگا ہوا ہے اسی ایریے میں آپ چلاتے ہو، تو پھر کتنی ارننگ ہو جاتی ہے؟ اگر اس کے بغیر چلاتے پھر کتنی فرق آتا ہے؟ اگر اسی حساب سے ایرے کے حساب سے ہو تو پھر 5,000 ہو جاتی ہے تقریباً. اچھا دائرہ اگر کے دائرہ حساب سے، لگاؤ تو ہاں بونس 5,000 بھی والا ہوا اور گارنٹی بونس میں. 1,220 کا بونس ہے تقریباً وہ الگ ہے. اچھا 16 رائڈوں پہ 1,200 کا بونس ہے. اچھا اس پہ گاڑی کی رننگ کتنی ہے؟ کتنے کلومیٹر آپ چلا لیتے ہو؟ مطلب کہ 9 گھنٹے میں آپ نے 16 رائڈیں کی، 4,500 سے 5,000 ارننگ ہو گئی، ٹھیک ہے. اس میں کمیشن کتنا اور لگ جاتا ہے تقریباً 1,000 تک کا کمیشن لگ جاتا ہے. اور کمپنی جو کتنا کمیشن لے رہی ہے آپ سے؟ کمیشن تقریباً 20% ہے. ایرے میں زیادہ لگ رہا ہے، 25% ہے. اور اگر میں اوپن چلاتا ہوں یعنی کہ ایریا نہیں لگاتا تو 1,000 تک کا لگتا ہے. 20% تک لگتا ہے. تو 1,000-1,200 روپے آپ کا کمیشن لگتا ہے. اور اس پہ رننگ کتنی ہوتی ہے؟ مطلب 16 رائڈ کرنے میں کتنی کی 16 رننگ ہو رائڈوں جاتی پہ ہے؟ شروع میں تو میں چلا رہا تھا جب نیا نیا آیا تھا اس فیلڈ میں، تو ٹھیک ہے. 130 ہوں 120 پہ چل جاتی تھی. جیسے کام میں آئے، اس کام کو سمجھا تو تب سے 60-70 میں 16 رائڈیں کمپلیٹ کرتے. 60-70 کلومیٹر میں آپ 16 رائڈیں کمپلیٹ کر جی لیتے ہو؟ 70-80 ہو جاتے آپ ہیں. نے ایل پی جی لگائی ہوئی یا پیٹرول پہ؟ LPG لگی ہوئی ہے اور 30 کی گاڑی کی ایوریج ہے. 30 کی ایوریج ہے؟ یار سنا ہے رکشہ 40-45 کی ایوریج دیتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہے کوئی کسی کا اپنا اپنا حساب ہے، کسی کے چلانے کا حساب ہے، کسی اچھا کی گاڑی کا حساب ہے. آپ 70 کلومیٹر گاڑی چلا رہے ہو تو 30 کے حساب سے کتنے کلو ایل پی جی لگی؟ اور اس ٹائم فی الحال کیا ریٹ چل رہا ہے ایل پی جی کا؟ بھائی اس ٹائم چل رہا ہے ریٹ 380 روپے چل رہا ہے تقریباً. یہ دیکھیں کہ 80 کلومیٹر پہ 1,000 کی آ جاتی ہے LPG. 1,000 روپے کی ایل پی جی آ رہی ہاں ہے تو آپ 4,500 ارننگ کر رہے ہو جی ینگو پہ اور 1,200 کا بونس لے رہے ہو. جی تو تقریباً یہ ٹوٹل کتنا؟ 5,700 کا ٹوٹل کام کر رہے ہو. اس پہ 1,000 کی ایل پی جی آ رہی ہے تو آپ جی 4,700 تک بچا رہے ہو. اس میں سے 500 روپے کھانا پینا نکال کے 4,000 آپ بچت کر رہے ہو. 9 گھنٹے میں آپ جو ہے 4,000 روپے پروفٹ کر رہے ہو. ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. تو اس حساب سے 4,000 دن کا ہو گیا. کیا آپ ایک مہینے میں 1,20,000 کما رہے ہو یا اس میں چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کی مینٹیننس بھی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے. تو مینٹیننس کتنی ہے اور آپ مہینے میں کتنے دن کام کرتے ہو؟ بھائی بالکل مینٹیننس بھی ہوتی ہے، مشینری ہے. مینٹیننس اس کی آ جاتی ہے اور تقریباً 7-8 ہزار روپے مہینے کی آ جاتی ہے آئل مینٹیننس. چینج اس کا کتنے لیٹر اور کتنے؟ 1 لیٹر آئل ڈلتا ہے، 1,200 روپے کا آئل ہو گیا. اور بغیر چھوٹا موٹا جو بھی ہو جاتا ہے مہینے کے اندر، پنچر وغیرہ یہ وہ 7-8 ہزار 10,000 میں 7-8 ہزار دس مینٹیننس ہے. ہزار روپے تو مینٹیننس مہینہ نکال پورا لیتے. آپ 30 دن کام کرتے ہو یا اس میں کوئی آپ ویکینڈ بھی آپ چھٹیاں وغیرہ کرتے ہیں؟ تقریباً میں مہینے کے 30 دن کام نہیں تو کرتا. تقریباً اتوار کو تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی کام نہیں کرتا میں. اچھا اور ویسے بیچ میں بھی 2-3 چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا تو آپ مہینے میں تقریباً 20 دن کام کر رہے ہو؟ ہاں 20 سے 22 دن ٹھیک ہے. کا. 20 دن میں مطلب کہ 4-2-8 ایوریج ہے نا، آپ 70 سے 80 ہزار کما رہے ہو ایسے؟ تقریباً 60 ہزار.
60,000। अभी इससे पहले आप कौन सा काम करते थे यांगो चलाने से पहले, और वो छोड़ा तो क्यों छोड़ा, इसमें आए तो क्यों आए? ये आपका अपना रिक्शा है या किसी का रेंट का है, किस्तों पे लिया हुआ, कैश पे लिया हुआ, कौन सा मॉडल है? भाई ये 25 मॉडल है, और इससे पहले जो काम करते थे हम कलर का काम करते थे, और 1200 पेंटर थे मतलब? जी, हाँ, 1200 रुपये दिहाड़ी थी। तो आज के दौर में 1200 रुपये में मजदूरी में कुछ नहीं हो रहा। जो तो इसी वजह से फिर रिक्शा लिया, एडवांस दिया हुआ, और किस्तों पे गाड़ी है। अच्छा, कितना एडवांस दिया है? इतनी कितनी कितनी किस्त है इसकी? 2 एडवांस दिया हुआ है, 6 की गाड़ी पड़ी है, और 20,000 रुपये मंथली किस्त है। अच्छा, मतलब कि 20,000 आप महीने का दे रहे हो, जी। और 2 लाख आपने एडवांस भी दिया है, और 0 मीटर लिया था। कितने किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक? अभी देख लें भाई, 8 महीने चली हुई गाड़ी। 8 महीने आपने चला ली है, तो आप 20,000 इसकी किस्त भी निकाल रहे हो, और अपना हिसाब किताब भी ठीक हो गया। ये आपने कितने, 1 साल भरने हैं पूरे? जी, 1 साल में किया। 1 साल में आपने इसको क्लियर करना है। 70 से 80,000 जो है ना मंथली बचा रहे थे, अब 20,000 इसकी किस्त भी है। किस्त देने के बाद आपके पास कितना जो जेब में आ जाता है भाई, सारे खर्चे निकाल के आप घर लेके जा रहे हो इससे कमा के? भाई सारा को निकाल के जो है ना, हम्म, 40 से 50 बच जाता है। 40 से 50। और आपने छोड़ी जो नौकरी है, वो काम छोड़ा है, 1200 रुपये उसको वो आपको दिन का देता था। जी, कितने घंटे काम करते थे? उसमें भाई सुबह 9 से जाते थे, और शाम को 6 से 7 बजे तक काम करते थे। अच्छा, मतलब उसके अंदर घंटे भी ज़्यादा थे, इसमें 9 घंटे में आप जी। ठीक है 50-60 हज़ार कमा रहे हो। ठीकने वाले बंदे को क्या मशवरा देना चाहोगे, इस काम में आए या नहीं आए? छोड़ कुछ वैसे तो मैं यही मशवरा दूंगा कि हर किसी की अपनी मेहनत है, जिसको दिल कर रहा है आने का तो अच्छी अर्निंग है, मेहनत है, मेहनत करे बंदा आए इसी काम को। और मेहनत मजदूरी में इतना तो 1200, 1300, 1500 में कुछ नहीं हो रहा। घर के निज़ाम मुश्किल से ही चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो तो मैक्सिमम जो नया बंदा भी होगा, मैंने भी नया नया जब था तो मैं तकरीबन कहीं 2500 से 3000 तक का काम नया नया में कर रहा था। सही है। तो कोशिश होगी हर बंदे की, जितना टाइम बंदा देता है काम को, जिस हिसाब से काम की सेटिंग बनती है। अच्छा, इस काम में सबसे बड़ा मसला क्या है जो आपको इसमें फेस करना पड़ता है रिक्शे में? रिक्शे रिक्शे के पे फेस ये करना पड़ता है कि बस कुछ कंपनियां यानी कि किराया फेयर नहीं दे रही। अच्छा, एलपीजी वगैरह यानी कि महंगी है। एलपीजी महंगी हुई है तो और पेट्रोल फेयर भी बढ़े कि नहीं भैया? फेयर वही है जो पुराने थे, यानी कि जब 210 पे। और जब मैंने गाड़ी ली थी तकरीबन 8 महीने पहले गाड़ी ली थी, तो 210 रुपये एलपीजी थी, तो किराया वही आ रहा था। लेकिन अब भी किराया वही है, और एलपीजी जो है ना तकरीबन हमने 500 रुपये किलो तक की डलवाई है। अच्छा, 500 तक भी गई है? जी, फेयर और वही है? फेयर वही है। अच्छा, कम। ये तो अल्लाह पाक का करम है कि फिर भी बचत हो रही है, और कुछ तरीक़ाकार हैं हमारे सीनियर्स हैं जिन्हें अच्छा, हमें बताया गया, सही इस है। हिसाब से आप काम करो तो अपनी आप अच्छी कर लोगे। बाकी इस काम में सबसे बड़ा मसला क्या है जो आपको फेस करना पड़ता है सारे दिन में, कि भाई इस काम में ये मसला है कि दूसरा आने वाला बंदा वो बर्दाश्त कर सके या ना? भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि अब वो गाड़ी खड़ी हुई है ना, सही है। किसी के घर के आगे खड़ी हुई है तो वो खड़ी रहेगी, कोई नहीं हटाएगा उसे। सही है। चाहे वो दुकान के आगे खड़ी हुई है कि किसी के घर के आगे खड़ी हुई है, कुछ भी है। ठीक है। जैसे हम रिक्शा लगाएंगे ना, सही है। तो वो गार्ड भी आ जाएगा कि हटाओ यहाँ से, ये फला ये वो, दुकान के आगे नहीं लगा सकते, ये फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें face असल करनी। असल में बात वो ये है कि मार्केट या किसी शॉप के आगे खड़े होकर वो प्राइवेट राइडें भी लेता है। क्या आप वो प्राइवेट जो राइडें होती है वो भी करते हो? वो इस वजह से नहीं खड़ा होने दे? नहीं, प्राइवेट से तो वैसे मार्केट में मिल जाती है सवारी, लेकिन वो कम ही, यानी हम अपनी टारगेट का काम है तो वो कम ही उठाते हैं प्राइवेट राइड्स। प्राइवेट राइड कम उठाते हो? अगर प्राइवेट राइड आपको उठानी भी है, अगर यहाँ से एयरपोर्ट जैसे कि 12-15 किलोमीटर का रास्ता है, आप कितना फेयर लोगे, मांगोगे कि भाई मुझे इतने चाहिए, तो फिर आप जाओगे प्राइवेट राइड? देखें वैसे तो भाई प्राइवेट पे तो 1000-1200 तक का, यानी कि और ऑनलाइन कितना आता है आपका? ऑनलाइन पर किलोमीटर का हिसाब आता है, तो वो बनेगी सारी राइड 700 से 800 रुपये तक की बनेगी। 700 से 800, यहाँ तक 13 किलोमीटर की 700-800 रुपए में। अच्छा, तो आपका इस काम में चल रहे हो तकरीबन 8 महीने से, इस काम में चल रहे हो। इस काम में आपको जो कोई अजीब वाक्य जो आपका किसी कस्टमर के साथ लड़ाई हो जाए या इस तरह के होते रहते हैं, तो कुछ हुआ इस तरह का? भाई यही 7-8 महीने हो गए, तो तकरीबन कोई कस्टमर से हो जाती है बहसबाजी, क्योंकि ऑनलाइन काम है। कभी कभार लोकेशन राइट्स नहीं कराना आती किसी किसी को, कभी आगे डाल देते हैं पिकअप लोकेशन और कभी पीछे डाल देते हैं। जब पहुंच जाते हैं
तो 1.5-2 किलोमीटर की राइड पिकअप करनी पड़ती है। सही है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है। ठीक है। और जैसे हम आगे पीछे जाते हैं तो वो बहसोबाजी से होती है भाई हमारी, तो फिर वो राइड कैंसिल कर अच्छा, देते हैं। ये मतलब कि छोटी मोटी ये चलता ये रहता चीज़ें है। चक्कर हाँ, में है। ठीक ठीक है। जैसे आपने बताया उस हिसाब से तो आप ऑल्टो से भी बेहतर कमा रहे हो, मतलब कि 70 किलोमीटर पे आप 5,700 का काम कर रहे हो, 1,000 का आप एलपीजी लगा रहे हो, तो आप ऑल्टो की भी एवरेज इतनी ही आती है इनकम। बाकी अच्छा, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि आप भी नए आए थे तो 120 किलोमीटर पे कम अर्निंग कर रहे थे, तो वो गलती क्या थी? क्या गलती थी कि भाई अर्निंग कम कर रहे थे आप, कि नया आने वाला वो गलती ना करे? भाई नया आने वाला ये गलती करता है हमेशा कि बस किसी से राय नहीं लेता। यानी कि कुछ सीनियर्स होते हैं जैसे कि उनसे आप शागिर्दी ले लें, यानी कि उनसे सलाह लें, मशवरा लें, किस हिसाब से काम करना है, क्या करना है, कैसे राइड्स उठानी है, कौन सी राइड लेनी है, कहाँ की लेनी है, कहाँ की नहीं लेनी है, ये अच्छा चीज़ है। अच्छा। और जब मैं भी नया आया था तो मैं भी तकरीबन जिधर की राइड मुझे समझ में आती थी मैं ले के चला जाता था। इस हिसाब से मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा था और जो है ना अर्निंग भी बहुत कम हो रही थी। और कभी कभार कहीं से राइड्स अच्छी लगती हैं और कहीं से राइड्स नहीं लगती। अच्छा, इन ड्राइव और येंगो में आप येंगो ज़्यादा चलाते हो, जी। इन ड्राइव क्यों नहीं चलाते? इन ड्राइव पे एक तो इन ड्राइव की सवारी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि इन ड्राइव पे ना कुछ वेटिंग सिस्टम दिया हुआ है कंपनी ने, ना कुछ। कस्टमर को लेने के लिए जाओ तो वो बस 10-15 मिनट पहले राइड करा लेते हैं। सही है। और जब उनकी लोकेशन पे जाओ तो बहुत कम कस्टमर होते हैं जो जल्दी आ जाए। इन ड्राइव पे में तो 5-7 मिनट 10 मिनट लेट ही आते हैं। और मैंने बाकी जब भी इन ड्राइव से राइड ली है तकरीबन कोई कम कस्टमर ऐसे मिले हैं जो जल्दी आ गए हैं। अच्छा, उसमें ऑफर वाला सीन भी है ना, कि ऑफर करो तो फिर राइड आ जाती है, इस हिसाब से। ऑफर का सीन यही है कि भाई अगर आपका आखिरी फेयर इन ड्राइव पे जो आ रहा है यंगो पे 10-20 रुपए का फर्क ही आता है। अच्छा, आज़ाद होने के बाद जैसे ये 1 साल में 8 महीने बाकी, 2 महीने बाकी रहते हैं, 4 महीने बाकी बचे रहे भाई। 4 महीनों में के बाद आप क्या इसी काम पे रहना पसंद करोगे या फिर आप चेंज हो जाओगे? गाड़ी की तरफ इरादा है या नहीं? देखिए भाई, अगर जैसे शुरू में यंगो आई थी तो अल्टो गाड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, रिक्शे की भी थी। और इस हिसाब से अगर नई कंपनी आ जाती है या तो किराए बेहतर हो जाते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह हर किसी की सोच होती है कि अगर किराए फेयर बढ़े, कोई नई कंपनी आ गई जिसके हिसाब किताब सही हुआ तो फिर शिफ्ट होंगे, नहीं तो शुक्र है मालिक का बेहतरीन है। आप इसी पे ही बेहतर रहेंगे। ठीक।